Hello, I am Rajendra Simori again in front of you with the mathematics from the Gyan Manjari Vidyapith Mahua. I hope so that everybody find at your home and you enjoyed our video lecture. Today we are going on in the video number 4. This is the part 4 of the unit number 2. Mathematics into the polynomials. We are going on to the last one portion, that is division algorithm for the polynomials. I hope so that and everybody has to doing a very fantastic job at your home, and number of students covered up the exercise very finest in the book. That is also be sent in the WhatsApp number, and if you feel any kind of the problem regarding the mathematics, you can also ask with my WhatsApp number that is given over here, and my mail also be given over here. So with the hope that everybody has to complete this portion. So before going on that last one portion, I am very much strict about the portion that already you studied in the through the video lecture. So first of all, going on that, just we are going first portion. At the last, I think we reached at the exercise number 2.2. that is already you have to covered up at your home now, and some of the students doing fantastic in the question number 1 and question number 2. So I hope so that if you have any kind of the problem regarding 2.2, just ask me, okay? And facing any kind of the problem, again you watch my video that is put into the YouTube. Now just we move forward in the last portion, that is the division algorithm, and this division algorithm for this polynomial, we are using the last one and very easy portion, that is the division algorithm for the polynomials. Now everybody knows that up to the 3 zeros, 1 0, 2 zeros and 3 zeros. We all know that 3 zeros obviously we find out in the cubic polynomials, 2 zeros that is quadratic polynomials, 1 0 that is linear polynomials. So now we also studied these 3 things, and also we studied out whatever the polynomials is given, how to split the middle term with the factors that we already know. Now these things is also be one of the use here. It will be asked here. So first in the textbook it is given the first example here, that is the example number 6. You just simply divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. Now two polynomials given in this example. One is 2x square plus 3x plus 1, and second one by x plus 2. So x plus 2, with these polynomials you have to divide first polynomials, that is 2x square plus 3x plus 1. तो जैसे हम सिंपली डिवीज़न करते हैं वैसे ही हमें करना है. ऑलरेडी वी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. ये 9th स्टैंडर्ड में 9th क्लास में आप सीख कर आए हैं कि कैसे एक पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल्स से डिवाइड करते हैं. और डिवाइड करना भी कितना इजी है देखो, कि सपोज़ हमें जैसे ही डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न के हर एक कंपोनेंट हम जानते हैं, इज़न्ट इट? हम हर एक कंपोनेंट को जानते हैं. आपको ये बता दूं कि शायद किसी कोई ऐसा हो कि वो अपना वो कंपोनेंट न जानता हो. ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं कि डिवीज़न में हम इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वो हमें ऐसा पता नहीं चलता है. ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा. यदि ऐसा है तो भी फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, हम यहाँ पे ये बात
के ऊपर हम ध्यान रखने वाले हैं अभी, कि जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है 2x² + 3x + 1 वन पोलिनोमियल्स इज हियर, इसको हम बोल रहे हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे? 2x² + 3x + 1 को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। x + 2 जो दूसरा पोलिनोमियल्स हमको दिया गया है वो है हमारा डिवाइजर। दो ही पोलिनोमियल्स की मदद से हम इसको क्या फाइंड कर सकते हैं? सिंपल भी हम डिवीज़न करना चाहे तो हम कोई भी दो नंबर को हम डिवाइड करें तो हमें दो चीज़ और मिलती है। वो क्या है? एक मिलता है क्वोशंट और एक मिलता है रिमाइंडर। तो जो भी क्वोशंट है वो थर्ड वन पोर्शन है। यहाँ पे आपको बाद में 2x - 1 मिलेगा और लास्ट में जब आप पोर्शन यूज़ करेंगे तब आपको मिलेगा 3, दैट इज़ अवर रिमाइंडर। सो दिस आर द 4 कंपोनेंट्स इन एनी डिवीजन प्रोसेस: dividend, divisor, quotient and remainder. So dear students, these all 4 things you remembered every time. Okay, now just going on that, कि सपोज हमारे पास 2x² + 3x + 1 है, उसको हम x + 2 से डिवाइड करेंगे। तो x + 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना है? पहले ये ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड कौन है? 2x² + 3x + 1 है। तो डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री जिसमें है, तो आप देखो तो 2x² + 3x + 1 में कौन हाईएस्ट है? 2x²। 2x² + 3x + 1 में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स कौन सा है? 2x² है। तो हमें क्वोशंट फाइंड करने के लिए हमें रूल है, यहाँ पे रूल को फॉलो करना है। जस्ट वी फॉलो द रूल हियर। फर्स्ट टर्म्स ऑफ द डिविडेंड, वॉट एवर द हाईएस्ट हैविंग द हाईएस्ट डिग्री, सो दैट इज 2x²। सो फर्स्ट दिस 2x² डिवाइड विथ द डिवाइजर्स हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, so it has also a highest degree, that is only 1, so x. So first we have to using these two things. First हमें क्या करना है? 2x² डिविडेंड में से हाईएस्ट लिया और डिवाइजर में से हाईएस्ट लिया हमने x। तो 2x डिवाइड बाय x करने से हमें क्या मिलता है? 2x²। यहाँ पे x गया और ऊपर का x गया, तो हमारे यहाँ बचता है सिर्फ 2x। और वो 2x हमें क्या ले जाना है? फर्स्ट टर्म्स ऑफ द क्वोशंट बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म्स ऑफ क्वोशंट। जस्ट आई रिमूव एवरीथिंग सो यू क्लियरली शो दिस थिंग्स। सो 2x² + 3x + 1 में हमने क्या किया? 2x² को x से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 2x² को x से डिवाइड किया। तो हमारे पास बचता है फर्स्ट टर्म्स, दैट वी पुट इनटू द क्वोशंट पार्ट। ओके, सो दैट इज 2x एंड नाउ वी आर गोइंग। सो दिस इज अ वेरी इजी थिंग्स। सो 2x just we have using here 2x. Now this 2x and x that is given into the divisor, 2x and x both have to multiplied and we making the another terms. So 2x into x, पहले हमें 2x को x से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है? 2x²। हो गया? 2x into x, that is 2x²। सेम थिंग, एक टर्म तो x हो गई मल्टीप्लाई, अब दूसरी टर्म्स को भी 2x से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमें? दूसरी टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 into 2x क्या हो जाता है? 4x, दैट वी पुट ओवर हियर। तो दो चीज़ हमें मिल गई। पहले हमें मिला 2x को x से मल्टीप्लाई करने से हो गया 2x²। दूसरा 2x को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 4x। ये मिलने के बाद और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है,
2x² और 4x जो भी न्यू टर्म्स हमें यहाँ पे जो भी न्यू टर्म्स मिलती है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जस्ट वी फोकस्ड ऑन द साइन। पहले हमें किस पे ध्यान रखना है? साइन के ऊपर ध्यान रखना है। साइन क्या है अभी? 2x² की बाय डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव है, प्लस है, 4x की भी पॉजिटिव है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम इसका सब्ट्रैक्शन करें तभी हमें ध्यान रखना है कि जो भी ओरिजिनल साइन है उससे ऑपोजिट साइन हमें यहाँ रखना है। तो 2x² की ओरिजिनल साइन अभी पॉजिटिव है, हम क्या करने वाले हैं? पॉजिटिव का नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी पुट स्मॉल ओवर हियर माइनस। देखो आप देखो 2x² के नीचे माइनस है और 4x है वो अभी ओरिजिनल प्लस है, तो अब क्या रखने वाले हैं? -4x। तो ये दोनों करने के बाद हमें जो ओरिजिनल उसकी थी अब वो साइन भूल जानी है, मतलब पहले प्लस प्लस थी, अब जो हम रखने वाले हैं वो ही साइन लास्ट तक हमें याद रखनी है। तो अब हमारी 2x² की साइन हो गई माइनस और 4x की साइन भी क्या हो गई? माइनस। ऊपर का आप टर्म्स देखेंगे तो अब ये 2x² है, ये 2x² को अब आप देखो, जस्ट वी फोकस्ड हियर कि सपोज ये 2x² है वो पॉजिटिव है, तो अब ये नेगेटिव हो गया, यानी ये प्लस और माइनस की वजह से कट हो जाएगा। दूसरी टर्म में आप देखो तो ऊपर +3x है और नीचे -4x है। +3 में से -4x चला जाता है, मतलब इट इज सब्ट्रैक्शन हियर and the sign will be higher term, so that's why we put minus, and between the 4 minus 3 that's why 1, so we have to put over here x, but which kind of the x? With the negative sign x, minus x, then we put remains +1 as it is over here, so we just carried over here +1 as it is. सो हो गया हमारा टर्म -x + 1। अगेन वी रिपीट द सेम स्टेप्स दैट इज वी फॉलो इन द फर्स्ट टर्म। पहले जो भी रूल हमने फॉलो किया था वही रूल आफ्टर गेटिंग -x + 1 हमें फिर से वही करना है। -x यहाँ पे मिला, -x को फिर से ये x से डिवाइड करना है। -x को x से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है? x चला जाता है, -1 बचता है। तो हमारा क्वेश्चन का दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? -1। इज इट क्लियर? तो -1 जैसे ही आ गया फिर से हम वही चीज़ को फॉलन करेंगे। पुट इट द -1 ओवर हियर, अगेन सेम थिंग वी आर यूजिंग 1 by 1 -1। फर्स्ट -1 मल्टीप्लाइड विथ द x, किससे हमें मल्टीप्लाई करना है? x से मल्टीप्लाई करना, तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाता है? -x। फिर से -1 को फिर से दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो है 2, तो -1 + 2 दैट इज ऑल्सो बी हैविंग द -2, सो वी हैव टू गॉट इट हियर -x - 2 दैट वी कवर्ड अप दैट, ओके। After getting -x - 2, same we are using the plus sign over here. So here given the whichever sign here given the plus sign because it's a -x, and here -2, that's why it is given the plus sign over here. दोनों की साइन आपने रख दी है यहाँ पे, तो -x ऊपर का और नीचे का हो गया +x, that's why it is cut it over here. ऊपर रहा +1, नीचे रहा आपका +2, यानी आपका +2 + 1 कितना होता है? +3. So that's way we have to get it the remainder. So this 3 is a remainder and 2x - 1 that is also a quotient. अब आप एक रूल यहाँ पे ये भी दिखने को मिलता है कि आपको ये प्रोसीजर कब तक चालू रखनी है, कब तक हम चालू रख सकते हैं? इसको हम तब तक चालू रख सकते हैं जब तक या तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या तो जो भी मिल रहा है उससे डिग्री जो है वो डिवाइज़र से कम होनी चाहिए। अभी यहाँ पे तो कोई डिग्री वाला टर्म्स आया नहीं है,
हमें यहाँ पे मिलता है 3। यहाँ कोई भी डिग्री वाला फॉर्म्स है नहीं, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। हमें यहाँ पे मिल रहा है वो कांस्टेंट टर्म है ना, 3 कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 है। बट x की यहाँ पे देखो तो x की डिग्री कितनी है, 1 है, तो 1 है। इससे ये यदि छोटी आए तब तक या तो आप कंटिन्यू करो ये डिवीज़न, या तो यहाँ पे जब तक 0 ना आए तब तक ये डिवीज़न एल्गोरिदम प्रोसीजर कंटिन्यू करो। तो जो इक्वेशन हमने अगले भी देखे थे वो इक्वेशन फिर से हम दोहरा लेते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जस्ट वी हैव टू वेरीफाइड इट। हमें वेरीफाई करना है तो डिविडेंड की जगह पे डिविडेंड रखो, डिवाइज़र की जगह पे डिवाइज़र रखो x+2। डिविडेंड हमारा है 2x² प्लस 3x+1, डिवाइज़र की जगह पे x+2 है। क्वोशंट की जगह पे हमारा मिला 2x-1 है और रिमाइंडर हमारा 3 है। यदि हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो तो यहाँ पे रखा है, आप शायद वो पोर्शन को भी देख लो, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि 2x² प्लस 3x+1 दैट इज़ अवर डिविडेंड, x+2 दैट इज़ अवर डिवाइजर, 2x-1 दैट इज़ अवर क्वोशंट, प्लस 3 दैट इज़ अवर रिमाइंडर। सो इंक्लूडिंग दिस थिंग्स x+2 एंड 2x-1, ये दोनों ब्रैकेट को यदि हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो पहली टर्म्स x और दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 2x² होगा। सेम थिंग वही x को x आप मल्टीप्लाई करो। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म्स कैसे मिलेगा, 2x² प्लस 3x+1। यदि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हो जाता है, देन दैट इज अ प्योरली that whatever we have divided with that polynomials, that is the factor of that things. So it is very easy, and that way we have to perform the various portions in the division algorithm over here. एक बात और बता दूं यहाँ पे कि दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिया है, सेम एग्जांपल्स आपको फॉलो करना है। आपको कभी कभी ये भी ध्यान में रखना है कि कभी आपको जो भी टर्म्स दिए जाती है वो टर्म्स सीक्वेंस में ना हो, तो पहले आपको इस पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को सीक्वेंस में करना है। अब देखो यहाँ पे 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5 दैट इज़ इन द सीक्वेंस, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो टर्म्स डिग्री जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी चाहिए, पहले बड़ी देन इससे छोटी छोटी छोटी, ऐसे हम उसको रख सकते हैं। उस पॉलिनोमियल्स को ऐसे ही अरेंज करना है और ये अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो वी फर्स्ट अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। जो भी डिग्रीज है उसके हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। रिकॉल दैट अरेंजिंग द टर्म्स इन दिस ऑर्डर इज कॉलिंग द राइटिंग द पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स बोलते हैं। ये जो भी करते हैं हम डिक्रीजिंग डिग्री, हम यदि डिग्री डिक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑफ दिस डिग्री इज नॉन एज द फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इन दिस एग्जांपल्स द डिविडेंड इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एग्जांपल में डिविडेंड के पॉलिनोमियल्स में सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही है, इसके लिए हमें उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन द डिवाइजर here given that in the divisor 1 plus 2x plus x², so that is not in the standard form. So first we have to convert into the standard form, and standard form is it's like that x² plus 2x plus 1. तो हमें क्या करना है, पहले ये पूरी प्रोसीजर को, ये पूरे डिवाइजर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो जाए बाद में ही हमारे पॉलिनोमियल्स डिवीज़न एल्गोरिदम उसके ऊपर अप्लाई करना है और प्रोसीजर चालू करनी है। तो आई होप सो दैट कि एवरीबडी हैज़ टू गॉट इट दिस थिंग्स। ओनली न्यूअर थिंग इन दिस एग्जाम्पल्स दैट इज़ ओनली वन। ओके, यदि आपको
समझ में ना आए तब तक आप उसको रिपीट करके रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक आप इसको रिवाइंड करते रहे। ओके, वन मोर थिंग्स ओवर हियर, आफ्टर फाइंड आउट दिस थिंग्स, सेम प्रोसीजर, एंड एट द लास्ट समटाइम्स वी हैव टू इवन द स्टेप्स। अब जो मैं ऑलरेडी आपको स्टेप्स बता गया हूँ वो स्टेप्स को सिर्फ हमें पढ़ना है, हमें याद रखना है कि टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे 3x - 5 दिया गया है ना, उसमें जो 3x है वो कैसे मिलाना है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3x है, अब देखो ये 3x हमें कैसे मिलाना है वो चीज़ को हमें समझनी चाहिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री से उसको डिवाइड करना है, किसको? डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को। तो हमें यहाँ पे देखना है कि डिविडेंड में फर्स्ट टर्म है हमारी 3x³। क्या है? 3x³। हाईएस्ट 3x³ है, उसको डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री को डिवाइड करना है, यानी 3x² डिवाइड बाय x²। यदि ये डिवीज़न दोनों का करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म ऑफ द कंपोनेंट, और फर्स्ट टर्म्स ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पहला टर्म हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ डिविडेंड्स हाईएस्ट डिग्री टर्म्स डिवाइड बाय डिवाइजर्स हाईएस्ट टर्म, इजंट इट? तो ये चीज़ आपको करनी है, दैट इज फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ दैट। सेकंड वन, नाउ टू ऑब्टेन द सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन, डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द न्यू डिविडेंड। जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है आफ्टर फर्स्ट स्टेप, हाईएस्ट डिग्री टर्म से उसको फिर से डिवाइड करना है। अगेन कैरी आउट द डिवीजन प्रोसेस विथ दैट। ये चीज़ आपको कब तक करना है? व्हाट रिमेन्स, जब तक आपको डिग्री ऑफ 9x + 10, यहाँ पे देखो तो तीसरे स्टेप में आपको मिल रहा है 9x + 10। नाउ द डिग्री ऑफ 9x + 10 इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर्स। डिवाइजर x² + 2x + 1 में देखो तो इसकी डिग्री 2 है, और 9x + 10 में इसकी डिग्री सिर्फ 1 है। तो ये 1 डिग्री है और वहाँ पे आपका डिवाइजर की डिग्री 2 है, मतलब डिवाइजर से रिमाइंडर की डिग्री यदि छोटी है, लेस है, तब तक हमें ये प्रोसीजर आगे बढ़ाना है, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए तब तक हमें ये प्रोसीजर करनी है। तो स्टेप 3 तब तक आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना है। ये तीनों स्टेप्स अच्छी तरह से याद रख लो। तीनों स्टेप्स हो सके तो अपनी नोटबुक में बारी बारी से लिख लो। ये लिखने से आपके स्टेप्स से वो क्लियर हो जाएंगे, और डिवीज़न में कभी डिवीज़न एल्गोरिदम के कोई भी सम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज़ अ very standard forms, and sometimes we have to using that p of x is equal to g of x into q of x into plus r of x। यदि ऐसा भी हम लिख सकते हैं, डिविडेंड को एक पोलिनोमियल्स का नाम दे दो जिसको p of x से हमें डिवाइड करना है। तो डिविडेंड का नाम दिया पोलिनोमियल्स का, वो p of x है। डिवाइजर का हमका दिया g of x है। क्वेश्चन जिसको हमने q of x से डिफाइन किया है, तो रिमाइंडर को हम स्मॉल r(x) से डिफाइन करें, तो इसी फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? तो p of x दैट इज अवर डिविडेंड, g of x दैट इज अवर डिवाइजर, मल्टीप्लाइड विथ क्वेश्चन दैट इज q of x प्लस रिमाइंडर r of x, वेयर r of x इज इक्वल टू 0, या तो 0 होना चाहिए या तो डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x। g of x का मतलब क्या है? हमारा क्या है? डिवाइजर। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ मेरे साथ आप सबको याद रखनी है। 2 रूल, 3 स्टेप्स और 2 चीज़ आपको यहाँ पे समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे, और आई होप सो दैट एवरीबडी हैज़ टू लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग इन दिस वीडियो। और समटाइम्स यू रिफ़र द टेक्स्ट बुक पैरेलली। यदि आप टेक्स्ट बुक साथ में रिफ़र करते जाएंगे और वीडियो
आप प्ले करते जाएंगे तो भी आपको ये सब सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए, इतनी इजी है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड थोड़ा बहुत इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पोर्शन हम ऐसा भी ले लेते हैं कि शायद आपको ये चीज़ समझ में आए। एक और एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल को भी सॉल्यूशन से आप रिफ़र कर सकते हैं, और लास्ट में वेरीफाई करना नहीं भूलना चाहिए। एग्जाम्पल में जब तक हमें दे तभी हम वेरीफाई करें, ऐसा नहीं होता है। हम वेरीफाई कर ले तो हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो डिवीज़न प्रोसेस पूरी की है वो सही है कि नहीं। So whether it is true or false, just we check out with this kinds of the procedure that is given over here. So you must be cleared about that. और sometimes in the example आपको इस इक्वेशंस के फॉर्म में कभी डिविडेंड दिया होगा, डिवाइज़र दिया गया होगा, क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, रिमाइंडर भी आपको दिया गया है, ऐसा 2.3 की एक्सरसाइज में आने वाला ही है। तो इस तरह सा कोई भी हो तो भी आप डायरेक्टली इसका सिंप्लीफिकेशंस करके आप रख सकते हो। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हियर गिवन द अनदर एग्जाम्पल फॉर दैट, एंड समटाइम्स इट विल आस्क लाइक दिस वे कि आपको एक बताया गया है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are under root 2 and minus under root 2। ऐसा भी एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है, और उसके हेल्प से आप कैसे फाइंड कर सको वो भी चीज़ हमें देखनी है। तो पहले हमें 2 जीरोस दिया गया, इसका मतलब हम x से कंपेयर करें तो पहले अंडर रूट 2 है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 रखे, तो जीरो से हम इसको डिफाइन करना चाहे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट 2 को ऐसे ही हम यहाँ पे लाए तो एक हो गया आपका x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और दूसरा हो गया आपका x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। अब दोनों को हम जीरो से कंपेयर करना चाहे तो क्या हो जाता है, x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 हो गया पहला a, और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू x, यहाँ -2 ऑलरेडी है तो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस वन। ये दो चीज़ हमें आपको मिल गई, x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ से हमें 2 मिला। ये दो चीज़ को हम कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पे दो चीज़ x माइनस अंडर रूट 2, x प्लस अंडर रूट 2, यदि इसको आइडेंटिटी के साथ मिला दो तो ये हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई। इसके ही फैक्टर लगते हैं ना आपको, x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2, वो किसके फैक्टर लगते हैं हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी आप याद करो तो a माइनस बी a प्लस बी, तो हमारे पास x माइनस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 ऑलरेडी है, तो हम इसके रख सकते हैं। तो x को a स्क्वायर की जगह रखे तो x का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे वो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाता है, 2। दैट्स वाई we have to collect x square minus 2, that is one of the factor of given polynomials। अब ये चीज़ मिलने के बाद हम सीधा x square minus 2 से वो डिवाइड कर देंगे। x minus 2 को हमने क्या किया, वो डिवाइज़र बन गया, और हमारा डिविडेंड तो ऑलरेडी है ही, उसकी मदद से हम फाइंड कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर जो ऑलरेडी हमने अगले एग्जाम्पल में देखी, इसकी मदद से हमने क्या फाइंड किया, क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन जैसे ही फाइंड कर लिया आपको बताया गया है, जैसे मैंने आगे भी बताया कि फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द डिविडेंड को किससे डिवाइड करना है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द डिवाइज़र। तो डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स कौन सा है, 2x4, मतलब 2x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय x रेज़ टू 2। तो यदि ये चीज़ आप यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगी 2x स्क्वायर, क्वेश्चन की पहली 2x स्क्वायर, सिमिलर वे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जैसे ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया है। तो ये चीज़ फाइंड करने से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा,
अब हमें रिमाइंडर भी है, क्वोशंट भी है, डिविडेंड भी है और डिवाइज़र भी है। ये सभी को मिला दो और यदि हम ये दोनों को मिला के उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें और एक चीज़ मिल सकती है। तो हमें पहले तो मिल गया कि √2 माइनस √2, दो तो फैक्टर है ही, दूसरे फैक्टर्स हमें मिलने वाले हैं। वो क्या है कि जैसे हमने 2x² - 3x + 1 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को हम 2x - 1 और x - 1 से हम लिख सकते, क्योंकि -3x को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करेंगे। क्या करेंगे हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करेंगे तो -3x है उसको और फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2x² - 3x + 1। तो वी हैव टू फाइंड आउट 2x - 1 एंड x - 1। तो ये जो दो फैक्टर मिल रहे हैं वो दो फैक्टर को हम सिंप्लीफाइड करें तो 2x = 1, x = 1/2 दैट इज़ 1 एंड x = 1। सो हमारे पास टोटल 4 ज़ीरोज़ हो गए। यहाँ पे ऐसा बताया गया ना, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल्स, ऐसा बोला गया है। तो 2 ज़ीरो हमको दिए गए थे और उसके ऊपर से हम और 2 ज़ीरो फाइंड कर लिए, x = 1/2 एंड 1। So I hope so that is also be easy things for you. Now we just move forward. So this is your exercise 2.3. अब इस एक्सरसाइज में आपको अभी मैंने बताया पहले क्वेश्चन में डिवाइड द पोलिनोमियल्स p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following. तो आप 3 सम के दो पोलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं, p of x और g of x। आपको p of x पोलिनोमियल्स को g of x पोलिनोमियल्स से डिवाइड करना है। तो सिंपल सा है, आपको सिर्फ डिवीज़न एल्गोरिथम, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके आपको करना है और फाइंड आउट सिंपल क्वोशंट एंड रिमाइंडर। लास्ट में आपको लिखना है अलग से कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चंस इज इक्वल टू सो एंड सो एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू सो एंड सो, देन एंड देन योर क्वेश्चंस कंप्लीट विद दैट आंसर। तो पहले क्वेश्चंस में ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल्स इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल्स बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल्स बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल्स। ये चीज़ है वो थोड़ी बहुत आपको क्वेश्चंस की तरह से थोड़ी हट के लग रही है, बट दैट इज ऑल्सो बी वेरी इजी। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल्स बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल्स को फर्स्ट पोलिनोमियल्स से डिवाइड करना है और आपको ये बताना है कि दिस t² - 3 इन द फर्स्ट that is a one of the factor of that given second polynomial or not। हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दिया गया पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से यदि आप डिवाइड करें तब आपको जो भी चीज़ मिल रही है वो रिमाइंडर जो भी आपको मिल रहा है वो आप मिलने के बाद यदि आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वेशन में आप रखेंगे, यदि वो इक्वल आ जाता है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी कैन से दैट इट्स वन ऑफ द पोलिनोमियल्स, इट इज़ ए वन काइंड ऑफ पोलिनोमियल्स, इट इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस गिवन सेकंड पोलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, पूरी प्रोसीजर डिवीजन लॉन्ग डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से ही करना है। जैसे आप डिवीज़न कर लेते हैं बाद में आपको दोनों साइड वेरीफाइड करना है, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये इक्वेशन आप रखने के बाद यदि दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि सेकंड जो पोलिनोमियल्स है उसका फर्स्ट पोलिनोमियल्स वन ऑफ द फैक्टर है। सो दैट इज ऑल्सो बी इजी। सेम वे 1, 2 and 3 यू हैव टू परफॉर्म। थर्ड वन जो अभी हमने एग्जाम्पल लास्ट देखा उसके तरह आपको करना है कि 2 ज़ीरोज़ आपको दिए गए हैं, बाकी के ज़ीरोज़ आपको फाइंड करने हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो
last one example, based on the last one example you do yourself. And fourth one, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomials g of x, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find g of x. तो आपको इक्वेशन सीधा ही रखना है. कौन सा इक्वेशन? मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि यदि आप ऐसा इक्वेशन रखेंगे तो सीधा सा आपको समझ में आ जाता है. कैसे? कि आपको पता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x आपका क्या है? डिविडेंड है. आपको रखना है दूसरा g ऑफ x इंटू क्या रखेंगे आप? q ऑफ x. क्या रखेंगे? q ऑफ x प्लस आपको क्या रखना है? r ऑफ x. फिर से आपको शायद समझ में ना आता हो तो फिर से मैं बोल रहता हूँ. इस फोर्थ क्वेश्चंस में आपको करना क्या है? सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि p ऑफ x को आप कंप्लीटली यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? सिंपल सा पहले जो इक्वेशन हम यूज़ करते आए वही चीज़ आपको हम यूज़ करेंगे. पहले आपको p ऑफ x रखना है, वो आपका डिविडेंड हो गया. फिर इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x. जो भी चीज़ आपको बताई गई है वो इस इक्वेशन में आप रख दो. आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स है तो डिविडेंड आपके पास है, रिमाइंडर आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है. आपको सिर्फ डिवाइज़र फाइंड करना है. तो इस इक्वेशन में रखने से आप सीधा सा ये फॉर्मूला ही सीधा पुट करके आपको ये सम कैलकुलेट करना है. तो हो जाएगा ना दोस्त? वेरी गुड. एंड now we move on to the portion. So fourth one, that is very easy. Fifth one, if you have to go through that after completing this 2.3 up to fourth questions, you will be developed as a homework. Okay, so I also given into the description also and given into the link that today's homework is related with exercise 2.3 question number 1, 2, 3 and 4 only. Okay, so just at the last, thank you very much for give us this whole chapter. Now this chapter almost all over the descriptive portion and all the exercise with the example is completed. But still you have found any kind of the problem, just ask me directly. Whatever the questions not understanding well, you give me the details. That's why I'm also again give the guidance for that. So don't worry about it. Thank you very much. And still we have to watch the next video. Thank you.